नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज शनिवार 8 जून 2024 को आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की पीओपी के कुल एक 394 जेंटलमैन कैंडिडेट पास आउट हुए हैं और देश को 355 सैन्य अफसर भी मिल गए हैं। मित्र देशों के भी 39 जेंटलमैन कैंडिडेट आज सैन्य अफसर बन गए हैं। पीओपी की सलामी सेना के उत्तरी कमांड के जेसीओ लेफ्टिनेंट जनरल एवीएम सुचिद्र कुमार ने ली है। वहीं पीओपी सेरेमनी में भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी उपस्थित रहे। इसी के चलते आईएमए में आज 154वां नियमित और 137वां तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स संपन्न हुआ है। Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The exemplary drill movements, immaculate bearing, and a roaring command give us a glimpse of a leader in making.
देवी और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का पहला निशान द किंग कलर 18 नवंबर 1934 को प्रदान किया गया था। देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया था। इसी दिन पुराने निशान को ऐतिहासिक चैटवुड भवन में यादगार चिन्ह का स्थान मिला। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम प्रमाणित करते हैं इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। The number of our alumni who've been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism in fire in the war since independence. Some where blizzards and snowstorms rule. Some where the wind blows full of sand. Some where the waves hold argument with the sky. And some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. देवी और सज्जनों, जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। First officer cadet leading the parade is Academy Under Officer Praveen Singh. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Ajit Sharma. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Param Sabharwal. Second contingent is led by Senior Under Officer Puri Vamse Krishna. The third contingent is being led by Senior Under Officer Surinder Singh Bhandari. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colours, is led by Senior Under Officer Mukesh Beniwal. And the escorts are Sergeant Lokesh and Sergeant Abhishek Lamba. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Harshvardhan Singh Parihar. The fifth contingent is led by Senior Under Officer Shubham Mayank Singh. The sixth contingent is led by Senior Under Officer Vinay. Leading the last contingent is Battalion Under Officer Omid Joshi. Bringing up the rear of the parade is the Academy Cadet Adjutant Mohit Kapri, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Gajendra Singh Sidhu.
कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha, formerly known as Taranai-e-Hind, the anthem of the people of Hindustan. In all nations and at all times, martial music has accompanied feats of arms, serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the fieriest of oration could not. देवी और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्ध काल हो या शांति काल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं परंतु देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम बाहर रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। युद्ध के दौरान यही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक। Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant moving to take his position at the western end of the drill square. The adjutant. और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली में। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक। आज लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर होगी समीक्षा बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। उत्तराखंड के भी कई वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। करण माहरा, यशपाल आर्य भी होंगे बैठक में शामिल। हाईकमान को करण सौंपेंगे पार्टी के प्रदर्शन की रिपोर्ट। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है कांग्रेस की, और इस दौरान उत्तराखंड से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, वो भी बैठक में मौजूद होंगे। और दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है, वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। साथ ही करण माहरा जो अपने प्रत्याशी हैं उनके प्रदर्शन के रिपोर्ट कार्ड भी दिल्ली हाईकमान को सौंप सकते हैं। तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे। करण माहरा, यशपाल आर्य भी बैठक में शामिल होंगे। और इस दौरान दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जहां पर तमाम नेता कांग्रेस के आज दिल्ली में होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये एक बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है दिल्ली में। तो कांग्रेस मुख्यालय में ये 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और उत्तराखंड के भी कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और करण माहरा और यशपाल आर्य भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जहां पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है और 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे बैठक होगी और इस बैठक में उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। और सूत्रों की माने तो आज हाईकमान को करण माहरा पार्टी के प्रदर्शन की रिपोर्ट भी सौंपेंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस के तमाम नेता, आज दिग्गज नेता मुख्यालय में पहुंचे हैं और 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और उत्तराखंड से भी कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी बैठक में पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये बैठक होने जा रही है और 11 बजे ये बड़ी बैठक होगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी हैं? एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जो रिपोर्ट रही है उत्तराखंड से वो भी करण माहरा सौंप सकते हैं केंद्रीय नेताओं को। जी सर, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और तीसरी सरकार का जो है गठन होने जा रहा है। मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जो है पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार, और ऐसे में जो है तमाम तैयारियां उसको लेकर चल रही है। तो वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें और कांग्रेस पार्टी की बात अगर उत्तराखंड में की जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें इस बार भी जो है हार का सामना करना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 5 ही सीटों पर हैट्रिक लगाने का काम इस बार किया है और 5 ही सीटें केंद्रीय नेतृत्व की झोली में डालने का जो है वो काम किया है। तो वहीं देखा जाए तो इस बार कांग्रेस को की जो पूरी रणनीति रही है, कई मायने में जो हार के कारण है वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पहले भी कह चुके हैं कि अगर टिकटों के बंटवारे को लेकर कई गलतियां हुई हैं, अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और देखने को मिलते। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी समीक्षा बैठक भी कर रही है और आज दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस पार्टी की है और ऐसे में समीक्षा बैठक वहाँ पर भी की जाएगी। और CWC की ये बैठक है, उत्तराखंड के कई नेता उसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, CWC के मेंबर प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी हो सकता है उसके जो है मीटिंग में मौजूद रहे और ऐसे में ये बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ कारण रहे हैं समीक्षा उसकी की जाएगी। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहले ही कह चुके हैं कि अगर बड़े नेताओं का चुनाव न लड़ना, उनका लगातार चुनाव से इनकार करना, ये भी एक हार का कारण है और ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और ही देखने को मिलते। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं और ऐसे में और भी क्या कुछ कारण हार के रहे हैं उनको लेकर भी जो है चिंतन मंथन वहाँ पर होगा। हो सकता है कि करण माहरा जो कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है कि क्या कुछ कारण रहे हैं, वो रिपोर्ट भी वो हाईकमान को सौंप सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लगातार कहा है कि बड़े नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा, तो वो भी एक कारण है और उसकी भी जो है करण माहरा हाईकमान के सामने रख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो टिकटों के बंटवारे को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से प्रदेश नेतृत्व चाहता था या प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में आज हाई लेवल मीटिंग है और समीक्षा उसको लेकर होगी। उत्तराखंड में आखिर 5 सीटें कहाँ पर हारे हैं, किस लिए हारे हैं, क्या कुछ कारण रहे हैं, बड़े नेताओं की क्या भूमिका रही है, क्या कुछ कार्य किसकी भूमिका रही है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आज समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में पूरा चिंतन मंथन होगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के कारण क्या कुछ रहे हैं। अच्छा अरुण, क्योंकि 2022 के जब इलेक्शन हुए थे और जहां जहां पर कांग्रेस हारी थी वहां के प्रदेश अध्यक्ष को जो थे उनके इस्तीफे भी लिए गए थे, लेकिन लोकसभा में इस तरह की चर्चा अभी तक हालांकि देखने को नहीं मिली है। अभी सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है दिल्ली में, और क्या कुछ चर्चा संभव है इस दौरान? जी सर, देखिए, जो बैठक होनी है उसमें पूरी समीक्षा बैठक होगी। जिस तरीके से लगातार हो सकता है कि बड़े नेताओं से इसको लेकर सवाल भी पूछे जाए कि आखिर उन्होंने चुनाव लड़ने से क्यों इनकार किया, किस लिए किया, क्या कुछ रहे हैं। क्योंकि अगर टिहरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ पर मार्जिन जो है इतना 2 लाख का रहा है। वहीं अगर पौड़ी लोकसभा सीट की करें तो पौड़ी लोकसभा सीट से जिसे प्रदेश नेतृत्व चुनाव लड़ने के लिए चाहता था उन्हें टिकट दिया गया। लेकिन हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी मार्जिन 1,61,000 कराया, यानी पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले इस चुनाव की बात की जाए तो मार्जिन कई सीटों पर जो है मार्जिन जो रहा पिछले 2019 के चुनाव में रहा था, इस बार वो घटा है। तो ऐसे में अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो ये मार्जिन
कुछ और ही होता और परिणाम कुछ और हो सकते थे। तो ऐसे में इसको लेकर तमाम समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक में जो है क्या कुछ कारण रहे हैं, बड़े नेताओं पर भी जो है हाईकमान नकेल कस सकता है। तो ऐसे में ये तमाम चर्चाएं उस बैठक में होगी और पूरी समीक्षा होगी और उसके बाद ही जो है क्या कुछ इसमें स्पष्ट कारण निकल कर सामने आते हैं, किस वजह से कांग्रेस पार्टी की आ रही है, तभी स्पष्ट होगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से इस्तीफे की बात हो रही, अभी तक कांग्रेस के हाईकमान में ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे किस तरीके से कांग्रेस उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत करने का काम करती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी चलेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे जो लोग थे उनको सकुशल तो बाहर निकाल लिया गया था, रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन अब ट्रैकिंग एजेंसी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पाबंदी लगाई गई है और पुलिस ने ये एजेंसियों पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही एसओपी तैयार नहीं की गई थी और डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने एक समिति का भी गठन किया है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर सहस्त्रताल हादसे पर बड़ा एक्शन हुआ है। ट्रैकिंग एजेंसी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही एजेंसियों के लिए एसओपी तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है और डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह के बिष्ट जो हैं उन्होंने इस कमेटी का गठन किया है। हरिद्वार के सिडकुल में कर्मचारियों के शोषण को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में बीएमएस से जुड़े कर्मचारियों ने सहायक श्रम कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले विरोध मार्च भी निकाला गया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मजदूरों का शोषण करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री सुमित सिंगल ने यह आरोप लगाया कि हरिद्वार के सिडकुल में स्थापित कई फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को सरकार की तरफ से तय की गई न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। उसमें जो भी हमारे पास शिकायत आ रही है, श्रमिकों की शिकायत आ रही है, उसकी हम प्रॉपर तरीके से जांच कर रहे हैं और जांच के क्रम में जो भी अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई हेतु, ठीक है ना, अनुमति, विभागीय अनुमति प्राप्त करके उसमें हम उसमें निरीक्षण करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उनका कहना है कि कुछ परमिशन है कि विभागीय अनुमति के उपरांत ही जो है ना किसी प्रतिष्ठान में निरीक्षण की व्यवस्था है, तो जैसे शिकायत प्राप्त हो रही है उसको हम निरीक्षण के क्रम में जो है अनुमति प्राप्त करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर के लगातार जो भी हमारे पास श्रमिक आए हैं उनकी सबकी शिकायतों को हमने प्रबंधन को बुला करके वार्ता भी की है और उनकी शिकायतों को हमने उसका समाधान भी किया है। अधिकांश प्रतिष्ठानों के जो भी शिकायत प्राप्त हुई है उसका समाधान हम कर रहे हैं और किया समाधान। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।